Good morning, student. Hello, I am Nikitan Kumar, your economics teacher. Today, will Today I will teach you second unit of macroeconomics, which is money and banking. Actually, it includes two chapters. One is money and second is banking. So, in money part, we will discuss about money. What do you mean by money? And their origin and all these things like supply of money and on the other chapter you will see the banking part, how the bank create credit, so you will learn these things and what are the functions of central bank, so we have to understand this. So unit 2 include two chapters, one is money and second is banking. So let me start with the first chapter, money. Okay. You have to just meaning of money. If you want if you write the thing, a thing which is commonly accepted. Commonly accepted as a medium of exchange. So you can understand from these words, medium of exchange. जब पैसा नहीं था तब हम क्या करते थे, तो हम वस्तु के बदले वस्तु बदलते थे, उसको बोलते हैं हम सीसी इकोनॉमी. ठीक है. बट जब से मनी का इवोल्यूशन हुआ है तब से हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें वस्तु के बदले वस्तु बदले, क्योंकि जो सिस्टम था सीसी इकोनॉमी, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, उसमें थोड़ी कमियां थी. तो उसी वजह से हमने मनी की इन्वेंशन किया है, मनी को इवेलुएट किया है. तो मनी का मीनिंग यहाँ पे आप बता सकते हो, अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. So example, a rupee in India is money. It is commonly accepted medium of exchange here. Likewise, a dollar in USA is also money, as it is commonly accepted medium of exchange there. What will happen in olden days? In olden days, goods were exchanged for goods. In olden days, you can see we are exchanging goods with goods. There was no money. A cobbler would make shoes in return of wheat from the farmer. Okay. Example. A farm worker would get grains as a reward for his labor. Like example. So this system of exchange in olden time में जो होता था, this system of exchange was known as आपको याद करना पड़ेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, वो बार्टर सिस्टम है, वो आपको so student you can understand in olden time how the goods exchange with goods. So
That system is known as barter system. You can see here on the board, whatever. The system of exchange was known as barter system. तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 मार्क में आपको क्या इसका जवाब देना है सुटेबल। अब इसके आगे समझते हैं क्या है। So you can understand from this concept, this system of exchange barter system having the lots of problem. As you know, demands multiplicity of wants means a greater need for exchange. Barter system proved to be an inefficient system of exchange. It is then that we invented money, a common medium of exchange. Now goods were not sold for goods. Instead, goods were sold for money. Now time. Initially, coins of gold and silver were introduced as a money. You have to know also. Initially, in early stage. Initially, coins of gold and silver were introduced as money. After then, alloy metals were used for coinage along with paper money, and now in the age of plastic money, now the age is plastic money, cards, cash card, or e-money is in the form of electronic transfer of money by way of credit, debit entry in the bank account. Thus, the origin of money is related to the need to facilitate exchange. Why we need money? ऑरिजिन करने की जो ज़रूरत थी वो था द ऑरिजिन ऑफ मनी means origin means evolution of money. So evolution of money is related to facilitate exchange. Okay. The origin of money is related to the facilitate exchange. Exchange कर सकें ये basic point है. So now you can understand evolution of money is related to the need to facilitate exchange. Need to facilitate exchange. Therefore, money is the generally defined as the things that is commonly accepted as a medium of exchange. Alright. इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज का टाइम जो चल रहा है, मॉडर्न टाइम चल रहा है, ये कौन सा टाइम चल रहा है? प्लास्टिक मनी टाइम और ई बैंकिंग, है ना? हो रहा है ना आजकल, सभी सारी ट्रांजैक्शन हम बैंक के थ्रू कर पाते हैं। अच्छा, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर आगे इसके बताते हैं क्या करना। Initially, money invented as a medium of exchange. Initially, money invented as a medium of exchange. शुरुआत में तो ऐसा ही हुआ था, बट मनी के और भी यूजेस पता लग गया हमें, जैसे
मनी इज यूज एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू। इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। और मनी यूज एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग, यू कैन से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग, इन अदर वर्ड्स में कह सकते हैं। कर सकते हैं ना मनी को सेविंग। और 10 ईयर्स 12 ईयर्स जितने भी टाइम होगा, और वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी करेंसी चला रही है और कितने साल बाद उसको चेंज कर रही है, तो उससे मैटर करता है। तो उससे हम डिसाइड कर पाते हैं। मनी आए और भी मनी आया यहाँ पे आपको मैंने इनिशियली बताया, फिर मैंने बताया कि और भी यूज़ हो सकते हैं मनी से। हम इससे मेज़र भी कर सकते हैं, वैल्यू मेज़र। कोई भी गुड्स है या सर्विस है उसको हम वैल्यू में नाप सकते हैं ना। 1 किलो एप्पल कितना मेज़र 50 रुपये के जी, तो मेज़र करना सीख गए। तो अदर यूज़ क्या हो गया? मेज़र ऑफ वैल्यू। तो मेज़र करना भी समझ गया। एंड मनी आल्सो यूज एज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एज ए यूज एज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड वर्ड आपको समझना है क्या है। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। सो यू कैन सी हियर, you can do with the money, you can deferred payment, you can do this deferred payment by the help of money. Payment are those payment which are made sometimes in the future. Standard of deferred payment means sometimes in the future, payment which are made sometimes in the future. Okay, ड्यू टू इट्स मल्टीपल फंक्शन, ये फंक्शन है, मनी हैज़ एक्वायर्ड ए वाइडर डेफिनेशन। तो मनी की डेफिनेशन भी अब बढ़ जाएगी। पहले तो हमने सिर्फ लिखा था इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पर नाउ इट इज़ डिफाइंड एज ए, क्या डिफाइंड करोगे, क्या बताओगे आप? इट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट। क्या बोल दोगे आप इसको? एक ऐसा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे आप मनी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पहला पॉइंट था ही। एंड सेकंड पॉइंट आप समझते हैं यहाँ पे, जो हमने अभी ऊपर लिखा है, स्टोर ऑफ वैल्यू। आप कॉमा डाल के लिख सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बनाना आपको। इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमा, स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, एंड मेजर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूँ, वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ऑलराइट, तो ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ना। इनिशियल की डेफिनेशन जो थी वो आप 1 मार्क में आपको मिल सकता है, ठीक है, नंबर दे देगा। बट प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे मनी के और भी फंक्शन पढ़ लिए, तो उन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से मनी को क्या बोलना चाहिए। पहले मैं बोलता था मनी इज एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑफ कोर्स दैट इज़ मनी, बट मनी आल्सो कैन बी स्टोर्ड and also you can use money as just value, you can value
ऑफ द गुड्स कर सकते हैं ना, कोई भी गुड्स है उसकी वैल्यू कर सकते हैं, वो मनी की फॉर्म में कर सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी। अब मैं उस ओल्डन डेज की बात करता हूँ, जो ओल्डन डेज में होता था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये इवोल्यूशन करना पड़ा और इतना मनी के बारे में हमको सीखना पड़ा। ओके, इवोल्यूशन देखें कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि ओल्डन डेज में पार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें इसको अदर नेम से आप बोल सकते हो सीसी इकॉनमी। कैसी इकॉनमी थी पहले हमारी? सीसी इकॉनमी, यानी कि पैसा नहीं था, कमोडिटी टू कमोडिटी, कमोडिटी टू कमोडिटी। कमोडिटी अगर नहीं समझ में आता तो आप गुड्स तो समझ में आएगा ना, गुड्स टू गुड्स या गुड्स टू सर्विस भी हो सकता है, गुड्स टू सर्विस, ऐसे पॉसिबल होता है ना। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस है, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस कह सकते हैं, ड्रॉबैक कह सकते हैं। क्या कमियां थी जिसकी वजह से सिस्टम में हमें चेंज करना पड़ा और इवैल्यूएशन करना पड़ा, मनी की इन्वेंशन करनी पड़ी। और आज मनी देख सकते हो आप कहाँ पहुँच गया है। पहले कहाँ कॉइन्स थे, गोल्ड, फिर सिल्वर्स के, फिर एलॉय के बने, उसके बाद पेपर मनी भी आया। पेपर मनी के बाद आप देख रहे हो आज कि प्लास्टिक कार्ड्स आ गए हैं। प्लास्टिक कार्ड्स के बाद आप देख सकते हो कि मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं हम, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आ गई है। तो ये सब क्या हो गया, एक्सचेंज का एक मीडियम मॉडर्न, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हमारे जो मनी की जो टर्मिनोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मनी की हमने वो सारे काम बताए थे, मनी क्या क्या काम कर सकता है, वो वही सारे काम यहाँ पे लिमिटेशन है। इसी वजह से मनी की वैल्यूएशन करी थी, क्योंकि बार्टर सिस्टम में ये सारी चीज़ करना। सबसे पहला पॉइंट लिखा है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब सेम टाइम पे जैसे हम फार्मर है, फार्मर और वन साइड इज कोबलर। ओके, कोबलर यानी कि मोची, जूते सिलने वाला। अब फार्मर और कोबलर, फार्मर को जूते चाहिए और कोबलर को हो सकता है अनाज चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, वेट चाहिए। बट हो क्या पता उसके पास पहले से ही हो, दूसरा किसी फार्मर से उसने जूते बनाए हो फार्मर के, उससे गेहूँ ले लिया हो। ये वाला फार्मर इसके पास जाता है, कहता है कि मैं आपको गेहूँ दे दूँगा, आप उसके बदले में मुझे जूते दे दो। तो कहेगा ऑलरेडी मेरे पास तो गेहूँ ऑलरेडी है, पर मैं आपका जूते नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, डबल कॉन्फिडेंस। डबल कॉन्फिडेंस का मतलब जो चीज़ आपके पास है वो इसकी नीड होनी चाहिए, और जो इसके पास है वो उसकी नीड आपको होनी चाहिए, तो आपके बीच में ट्रांजैक्शन हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो ये लैक आएगी। इसमें क्या आएगा, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। ये बहुत कमी थी, ऐसा बहुत ही रेयर होता था। जो चीज़ हमें चाहिए वो जिस पर्सन के पास है, और उसे जो चीज़ चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। समझ रहे ना। अब थर्ड वैल्यू यहाँ पे मैंने वही लिखा है, यहाँ पे लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू में, कि 1 किलो का प्राइस हम अब मनी में तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 रुपी, बट 50 रुपी वट एवर। बट उस समय हमें कि 5 केजी एप्पल का कितना और कितना उसके बदले में रिटर्न में वेट देना पड़ेगा, कितना राइस देना पड़ेगा, ये नहीं तय कर पा रहे थे, ये मुश्किल थी। तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट नहीं थी कुछ, कि कितनी सीप के बदले कितना भूसा मिलेगा या ग्रेन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता था। बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी। एंड एज वेल एज डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। देखो यहाँ पे एक और मैंने नाम लिख दिया इसको, डेफर्ड पेमेंट तो बोला ही है, फ्यूचर पेमेंट भी बोला, और इसको कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट पे जो पेमेंट होती है कि काम अभी कर रहे हैं पर पेमेंट हम इसकी बाद में करेंगे।
तो ये पेमेंट हो सकती थी कैसे, मनी के थ्रू हो सकती थी, बट बार्टर सिस्टम में नहीं हो सकती थी। चलो ठीक है, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे कि मैंने किसी से कुछ चीज़ ली, राइस लिए, ठीक है ना, 1 महीने या 2 महीने के लिए मैंने उससे राइस ले लिए, तो 2 महीने बाद वो मुझसे कुछ रिटर्न चाहेगा, वो भी चाहेगा राइस मुझे वापस मिल जाए, है ना, या वीट, जो भी चीज़ मैं लूँगा उससे, तो वो कहेगा मेरे को वही वाले राइस चाहिए जो मैंने दिए थे। तो सेम कहाँ से लाना मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए फ्यूचर पेमेंट तब नहीं हो पाती थी, बट मनी आने के लिए हम फ्यूचर पेमेंट कर पाते हैं। इसलिए मनी के टर्म में आपने ये सारी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। एंड फाइनली यहाँ पे क्या है, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। पहले के टाइम पे कोई भी चीज़ों को स्टोर करना मुश्किल था, मुश्किल तो हो गई। सपोज करो आपने वीट ले लिया, तो वीट को कब तक स्टोर करोगे, 1 ईयर 2 ईयर, फिर तो ख़राब हो जाएगा, तो वो ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते थे। बट मनी को तो आप कितने साल तक रख लो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उस पर, तो है ना। और ट्रांसफ़र करने में भी प्रॉब्लम आती थी, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने में। मनी को तो पॉकेट में डाल के, पर्स में डाल के, और प्लास्टिक कार्ड आ गया, अब तो मोबाइल बैंकिंग आ गई है, तो अब तो और ज़्यादा ईजी हो गया, कुछ कैरी नहीं करना। तो बट पहले तो क्या, गुड्स के बदले गुड्स होती, तो गुड्स को एक जगह से दूसरी ले जाने में प्रॉब्लम होगी ना। अब मैंने किसी से बिजनेस किया उस समय जब मनी नहीं था, उसके पास 40 सीप थी, तो वो मेरे को 40 सीप देते। अब 40 सीप को मैं कैसे ले जाऊँगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना मुझे, तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये थे ड्रॉबैक जिसकी वजह से मनी का इवैल्यूएशन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हैव अ गुड लक, best of luck for this, and learn these things in your book. And if you have any query about any concept in the money, so you can ask to me very freely, frequently. Okay, thank you, have a nice day.